नमस्कार दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि अब तक के बिहार की सबसे बड़ी खोज ये हमारी संस्था हेरिटेज सोसाइटी द्वारा की गई है, डॉक्टर अनंता आशुतोष द्विवेदी के निर्देशन में। Thank you, Dr. Ananta Ashutosh, for inviting me to this panel of experts who are going to talk to us online on the discovery of Tara image from Pachna, Shekhpura, Patna. This particular image is very important for three reasons. One, art and iconography. The art and iconography of this image is very fine, and it reminds me of the Magadha style of creation. Normally, we have seen Magad, a tradition of art starting from Mauryan period onwards, and there is a continuous representation in art forms right up to the Pala period, Sena period. So this is typical of Magad style. Then there are several centers of Magad art style right up in Nalanda, Bihar Sharif, and other central place. So this is one aspect. Then iconography point of view, there is a flame in the conical back of this stele, which reminds me of the deity being esoteric in nature, and maybe the description we may find in Pancharaksha Sutra of this particular type of image. Epigraphy is equally important. There is a inscription at the base, and I only wish that Achyutanand Jha can see this and have his own readings and finally decide about it. The discovery at Pachna needs to be verified, because the context of the image has to be determined, because I believe that the size of image suggests that this was fixed to some temple as a niche figure. It was somewhere in the niche, and there must be a few more sculptures of esoteric tantric type, and I believe we have to explore this area and study the mound, the site processal analysis or site formation analysis. This will give us idea that whether it is a site of a structure or it was simply out of place. So the context has to be determined, and from this angle also the discovery is important. And Pachna, the name as such suggests it should have some etymological meaning of this name, and from that angle also we need to see this. And I again thank you, Dr. Ananta Ashutosh, for giving me this opportunity to share my viewpoints. Thank you. मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 17 मई को ही इसको खोज दिया गया था, और हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ही इसकी लिपि को भी पढ़ ली गई थी। इसके बारे में पेपर में भी आया है, सबको पता ही होगा जहाँ तक कि। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसको आप लोग यूज़ करें, देखें, और जब भी इसका यूज़ किया जाए, इसको देखा जाए, इसके बारे में गहन अध्ययन किया जाए, तो हेरिटेज सोसाइटी और ख़ास तौर पे विशेष तौर पे डॉक्टर अनंता आशुतोष द्विवेदी जी का उसमें नाम ज़रूर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खोज है हमारी सोसाइटी के द्वारा। आपको बता दूं कि इसके बारे में हम लोग कला संस्कृति विभाग के जो माननीय मंत्री हैं प्रमोद कुमार जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, और उनको सारी सूचना दी गई है, सारी जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारा जो मूर्ति है और उसको सही ढंग से संरक्षित करने के लिए उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया, और उन्हें तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ के विभागीय लोगों को और ख़ास तौर पे शेखपुरा के डीएम को भी उन्होंने अवगत कराया, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो मूर्ति को वो लोग संरक्षित कर पाएँ।
discovery of the present sculpture of Tara by the Heritage Society from village Pachna in Sheikhpura district of Bihar is significant. It can be dated to about 11th century AD. Tara is feminine counterpart of Bodhisattva Avalokiteshvara. She is compassionate, helps people in crossing to other shore, protectress of navigation and earthly travel, as well as of spiritual travel along the path to enlightenment. She is a savioress deity and also included as one of the 10 Mahavidyas, Dash Mahavidya in Brahminical Shakta pantheon. The present sculpture is a rare example of Pal-Sen art where Tara is shown having faces in cardinal directions with a one-line inscription देव धर्मोयम दानपति। मैं रणधीर कुमार सोनी शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में पचना गांव में प्राचीन 11वीं-12वीं सदी का चतुर्थमुखी माँ का मूर्ति निकला है और उसे हेरिटेज सोसाइटी ने बहुत ही प्रख्याति दिलाने का काम कर रही है। खास करके डॉक्टर अनंत आशुतोष जी का मैं आभारी हूँ कि जिनको मैंने वह वीडियो और स्टिल फोटो भेजा और उन्होंने कहा कि यह तो बहुत ही अद्वितीय चीज़ है और 11वीं-12वीं सदी का है। मैं खास करके हेरिटेज सोसाइटी को इस कार्य के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि वहां पे और खुदाई करने की ज़रूरत है, उसे संग्रहित करने की ज़रूरत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह बहुत ही बड़ा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा और यहाँ बुद्ध के ज़माने से और पुराने ज़माने से बहुत सारी प्राचीन काल की मूर्तियां हैं, उसे विश्व स्तर पर लाने की ज़रूरत है। इसीलिए पुनः डॉक्टर अनंत आशुतोष जी से अनुरोध है कि वह जो कार्य कर रहे हैं उसमें और तेज़ी लाएं और हमारे पचना, हमारे विधानसभा क्षेत्र के पचना गांव को विश्व के मानचित्र पर लाएं। धन्यवाद। इसके लिए अपने डॉक्टर साहब को अनंत आशुतोष द्विवेदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और मैं प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलती रहे। ये हमारे जो 75,000 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे और हमारे जो अलग अलग ज़िले में जो हमारे मित्रगण हैं उनकी मदद से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके बारे में हम लोग 27 मई को शाम को 6 बजे फेसबुक पे एक सेमिनार भी करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि बहुत अच्छा एक सेमिनार हम लोगों ने बहुत पहले से चला रखा है विशेषज्ञों का और इसमें तमाम विशेषज्ञ और भी विशेषज्ञ एक साथ आकर आपको इसके बारे में मार्गदर्शन देंगे और अपने अनुभव को व्यक्त भी करेंगे कि इसकी उपलब्धि क्या रही है बिहार के लिए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं अपने गवर्नमेंट से और सबसे कि इस मूर्ति को एक अच्छे जगह पे म्यूज़ियम में उसको प्रतिष्ठित करने के बारे में विचार करें। उसके लिए मैं उन मंत्री साहब का भी, माननीय मंत्री का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हेरिटेज सोसाइटी बिना किसी सरकारी आर्थिक सहायता के और बिना किसी अन्य डोनेशन का आज तक का ये कार्य करते रही है और आपको मैं बता दूं कि हमेशा करते रहेगी। आप लोग जितने फॉलोअर्स हैं और जितने हमारे मित्र हैं उनके ही सपोर्ट से सारा कुछ होते रहा है और इसके लिए मैं उन लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि शेखपुरा ज़िले के जो पचना गांव के जो ग्रामीण हैं
उनको हमारे सोसाइटी की तरफ से, हेरिटेज सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनको करते हैं, क्योंकि उनकी मदद से ही ये सारा चीज़ संभव हो पाया है। तो मिलते हैं हम लोग 27 तारीख को। धन्यवाद, नमस्कार।